Hello everybody, welcome to the channel once again, and in this video we are going to discuss more about energies. Yes, this is going to be the last one. This is the last concept that we are going to discuss in this series. Yes, we will solve few problems in upcoming videos, but concept wise this is the last thing. This is the last video we are putting on energy. So this is part 4. We have already uploaded part 1, 2, 3. You can watch them in the playlist. So ये पार्ट 4 है. 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं. आप वो तीनों के 3 पार्ट इंक्लूडिंग दिस प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं. दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल द वीडियोज़ आर इन डिटेल. सो सारी वीडियो डिटेल में है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो exclusively we are going to discuss present value of annuity due here. We have already discussed future value of annuity due in the last video, and both present value and future value of an ordinary annuity we have done before that. So this is what we are going to learn here. So let's start learning. What we are going to learn, what is present value. We already know what is present value, and what is annuity due. We are familiar with both the term. Quickly let's do it. Present value, to find out what is the value that a particular amount will have if we convert them into today's rate. So let's say that you are going to get 1,000 rupees after 1 year, after 2 year, or means anything. Let's say you are getting annuity every year 1,000 rupees. This is first year, this is second year. So what is the present value? Actually it is not equal to the it is not as same the 100 rupees of this time. करंट टाइम मीन्स लेट्स से दिस इज़ 2020. सो 2020 में जो 1,000 रुपये की वैल्यू होगी वो 2021 के 1,000 रुपये की वैल्यू के बराबर नहीं होगी. हम ये बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं. सो हमें क्या होता है कि हमें वो वैल्यू निकालनी होती है. तो इस 1,000 रुपये की आज की रेट से वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, तो वो डिस्काउंट हम करते हैं जो हमें रेट दिया होता है. तो उस रेट से हम डिस्काउंट करके निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू. एन्युटी ड्यू जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एन्युटीज़ आर two types, ordinary annuity and annuity due, and it's depend on the period, means the period or the time when the annuity is actually due. Actually the payment of annuity is happening. If the payment is happening on the very first day of any period, the period could be anything like monthly, quarterly, semi annually or yearly. तो आपका जो पेमेंट कब होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी किस टाइप की एन्युटी है. अगर बिगिनिंग में आपका कोई भी पेमेंट हो रहा है या आप कोई इन्वेस्टमेंट किसी किसी पीरियड के बिगिनिंग में कर रहे हैं तो वो एन्युटी ड्यू का पार्ट होता है. और ऑर्डिनरी एन्युटी भी ऑलरेडी नो दैट कि वो किसी ईयर के किसी हाफ ईयर के मीन्स जो भी पीरियड होगा उसके एंड में अगर वो इन्वेस्टमेंट या फिर वो पेमेंट या फिर वो आप कुछ रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑर्डिनरी एन्युटी का पार्ट होता है. So I hope things are clear till now because we have come far enough to understand all these terms. So let's quickly jump into the case study. We are following from the. So as the question is saying कि आपके the same we are taking the same example. आपकी 1,000 रुपीज़ का एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं. नाउ अभी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है. 5 years फ्रॉम नाउ आप अभी से वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट रेट 5% के इंटरेस्ट रेट से आपकी जो एन्युटी आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है. याद रखिएगा कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसमें सिंपली आपको हो सकता है कुछ भी ना दिया हो कि आपका कब जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है और कब आपका पेमेंट मिलता है. बट हियर इट इज़ सेइंग दैट present value of 5 years from now. So this is also an example, this is also an indication or indication that this is a question of annuity due. So we have everything to solve the problem here. तो अब हम सीधे सीधे टेबल पे आते हैं, ठीक है. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि एन्युटी ड्यू के केस में जो पहला साल होता है वो जब से आप शुरू करते हैं तब से हो जाता है. अगर आज से आप कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो आज यानी कि 1 साल के बाद वो चीज़ शुरू नहीं होगी जैसे कि ऑर्डिनरी के केस में होता है. आज से वो चीज़ शुरू होगी तो उसको हम ईयर 0 लेके चलते हैं और उस हिसाब से 1 2 3 4 5 दीज आर 5 years. बट पहला साल हम 0 मान के चलते हैं. तो द सेम वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम इन द लास्ट वीडियो. C upon 1 plus
r⁴n, ये फॉर्मूला है। इसमें हम ये सारी चीज़ें पुट करेंगे पहले साल के लिए। n की वैल्यू 1, r की वैल्यू फिक्स है 1.045, तो ये है पहला साल जिसको हम जो है 0 1, दूसरा ये 1 2 3 4। तो बस ये चीज़ समझनी है कि एन्युटी ड्यू के केस में हम 0 से ईयर्स लेते हैं, और जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है उसमें हम ईयर्स 1 से लेते हैं। ठीक है, 1 से काउंट करते हैं। तो सिंपल सा कैश फ्लो सेम है और प्रेजेंट वैल्यू सिंपली निकल जाएगी। ये चीज़, इसको टेबल से याद करना, इसको टेबल से समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इन केस किसी साल में एक की जगह ये 2000 हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस टेबल की वजह से आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है इसको आप टेबल फॉर्म में रखें, आप सीधे रखिए। आपको निकालना है 1000 1 प्लस, या आप सीधे 10, ये हो गया पहले साल के लिए 0, इसी के आगे जो 1.05 टू द पावर 1 एंड सो ऑन। आप इसको सीधे ऐसे कर लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक द टेबल एवरी सिंगल टाइम, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो टेबल से समझना इसलिए भी ईजी है। मे बी क्वेश्चन को अगर वो घुमा ले कहीं से, एन्युटी बीच में हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि पहले 2 साल तक 1000 रुपीज़ की एन्युटी मिली और उसके बाद वो चेंज हो गई और 2000 रुपये का, मतलब कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप आसानी से समझ जाएंगे, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो लेट्स डू इट क्विकली यूजिंग द मेथड, यूजिंग द फार्मूला। जैसे कि फार्मूला याद करने का मेथड मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी से शुरू करिए, ऑर्डिनरी एन्युटी से आप शुरू करिए और उसी हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में जाएंगे, और जो एन्युटी ड्यू है उस तक पहुंचने के लिए सिंपल सी चीज़ है, जो इसका फार्मूला है और जो प्रेजेंट इसका फार्मूला है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाती है एन्युटी ड्यू, एज सिंपल एज दिस। जैसे कि ये आप देखेंगे, ये फैक्टर है ये 1 प्लस आर, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाता है तो उसको हम तो ये 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करके उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। सो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो टर्म्स हैं, सी कैश फ्लो पर पीरियड, इंटरेस्ट रेट इज़ आर, number of years is n, and obviously PV is present value. So यहाँ पे I also given a note. Just remember that in case of annuity due, you have to multiply the same formula for ordinary annuity by 1 plus r. Yeah, very easy. Let's come to the question once again. So as I always emphasize, to अंडरस्टैंड, टू ऑब्जर्व और टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट सेगमेंट, जहाँ पे आप पहले ये पता करिए कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास कैश फ्लो दिया है 1000 का, आपके पास रेट दिया है 5%, और 5% को हम लिख सकते हैं 0.05, और जो टाइम पीरियड है वो 5। अगर ये टाइम पीरियड ना भी दिया होता तो ऑलरेडी 5 एनुअल पेमेंट्स दिया हुआ है, वी वुड बी, तो सेम चीज़ है इसका कहने का मतलब। कई बार हो सकता है 5 ईयर्स ना दिया हो, 5 एनुअल पेमेंट दिया हो, तो भी हमारे ईयर्स होंगे वो रहेंगे 5। नाउ इट्स वेरी इजी, ऑल वी हैव टू पुट थिंग्स इनटू द इक्वेशन। या यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है 1000, आर की वैल्यू दी हुई है 0.05, एन की वैल्यू है 5 ईयर्स के लिए है तो 5। इन द सिमिलर वैल्यू यहाँ पे आप जब 1.05 की वैल्यू 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.26 सॉरी 1.276 समथिंग आएगा, 2728 दिस कुछ ऐसा वैल्यू आएगी। तो मैंने केवल 4 टर्म्स तक लिया है, तो इसको मैंने ले लिया है 2.763। ठीक है, तो ये ले लिया है 1.2763, 4 वैल्यू पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट कंसिडर करे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को हम इक्वेशन में रखेंगे। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी, बस इक्वेशन इज हियर, सारी चीज़ें पुट करिए, कैलकुलेटर यूज़ करिए, एंड आपका यह आ जाएगा न्यूमरेटर 290.115, यह आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर 0.0638, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट, दिस इज़ वेरी क्लोज, या तो यही आपका आंसर है 4547.28। तो इसी के जब, लेकिन इस मेथड से आप करेंगे तो आप ज़्यादा एक्यूरेट आने के चांसेस हैं, बिकॉज यू विल बी गो नियर बाई एज, जितना आप पास जाना चाहते हैं यू कैन गो, एंड सेम वे आपको इसको आप कर सकते हैं इस मेथड से। सो एज अगर चीज़ें सिंप्लीफाई हैं, एक फिक्स एन्युटी है, आपको टाइम दिया गया है, पहले आप ये डिसाइड करिए कि एन्युटी ड्यू का केस है या ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला आपको याद है, सीधे पुट करिए अकॉर्डिंग टू वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो
दिस इज़ इट। तो हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एन्यूटी के चारों चीज़ें। दोनों एन्यूटीज़ के दो दो पार्ट जो होते हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी के दो पार्ट और एन्यूटी ड्यू के दोनों पार्ट्स का बाय आई मीन दैट फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड यस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी टॉपिक। और नाउ इट्स अप टू यू, कीप प्रैक्टिसिंग थिंग एज मच एज यू कैन, क्योंकि उसके बाद ही जो फॉर्मूलेज हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके अंदर चले जाएंगे। और वैसे इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट आप कमेंट में आप मुझे अपनी क्वेरीज डालिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एवरीथिंग, every single issue you are facing. So this is it. Just keep on practicing, and yes, keep learning, and take care. See you soon in the very next video. Till that, goodbye.